ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ کلگام اور رجوری اضلاع میں 2 الگ الگ تصادموں میں 6 ملیٹنٹ ہلاک۔ پولیس نے کلگام میں ملیٹنٹوں کی ہلاکت کو ایک بڑی کامیابی سے کیا تعبیر۔ وائس آف گلوبل ساؤتھ کانفرنس سے وزیراعظم نریندر مودی کا خطاب۔ تمام ملکوں سے دنیا کی اور زیادہ بھلائی کے لیے متحد ہو جانے کی اپیل۔ بیک ٹو ولیج کے 5ویں مرحلے میں جل جیون مشن کے تحت جموں کشمیر میں 4464 سرگرمیوں کا کیا گیا انعقاد، اور 3 روزہ قومی روایتی چھاؤ پرو رقص فیسٹیول آج ٹیگور ہال سری نگر میں ہوا اختتام پذیر۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کلگام ضلع کے سمنو علاقے میں 2 دن سے جاری تصادم میں 5 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ آج کلگام میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں تصادم کے حوالے سے تفصیلات دیتے ہوئے ڈی آئی جی پولیس ساؤتھ رئیس محمد بٹ، فوج کے 2 سیکٹر کے بریگیڈیئر انیرودھ چوہان اور ایس ایس پی کلگام ساحل سرنگیال نے کہا کہ ان ملیٹنٹوں کا تعلق لشکر طیبہ تنظیم سے تھا اور ان کی شناخت کلگام کے یاسر احمد بٹ اور شوپیاں کے دانش احمد ٹھوکر، عبید پڑر، سمیر احمد شیخ اور حنزلہ کے بطور کی گئی ہے۔ ان کے قبضے سے کچھ اسلحہ اور گولی بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی موصوف نے ان ملیٹنٹوں کی ہلاکت کو ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ گروپ کافی سرگرم تھا اور کئی پنڈتوں پر کیے گئے حملوں اور غیر ریاستی باشندوں کو ہلاک کرنے میں ملوث تھا۔ 5 terrorists of the proscribed terror outfit Lashkar-e-Toiba were neutralized. The recoveries in the operation include 4 AK series rifles, 2 pistols, 4 grenades and other arms and ammunition. This operation has come after a lot of synergized efforts on the part of all the security forces which operate in the area, and it is a big success because these terrorists have been involved in a number of attacks on minorities, some of which I will enumerate here. The attack which happened last year in April in Shopian, in which one Kashmiri Pandit was attacked, Shri Sonu Bhatt at Chotigam. They were involved in that incident. Besides this, there was an attack on minority picket at Hipura Bhatgund in Shopian. Also, there was an attack on a cordon party at Watu Kigam. The attack earlier this year on non-local laborers at Shopian Gagran. جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ یہ تصادم کل شام سمنو علاقے میں ان ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس سلسلے میں کارروائی پولیس، فوج اور سی آر پی ایف نے مشترکہ طور پر کی۔ ادھر ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر رجوری پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے بہروٹ علاقے میں ایک تلاشی کارروائی شروع کی، جس دوران مشتبہ مقام پر چھپے ہوئے ملیٹنٹوں نے حفاظتی اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ طرفین میں تصادم آرائی کے دوران ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کیا گیا۔ جائے واردات سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولی بارود ضبط کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وائس آف گلوبل ساؤتھ ایک ایسا منفرد پلیٹ فارم ہے جس سے 21ویں صدی میں بدلتی ہوئی دنیا کی عکاسی ہوتی ہے۔ وائس آف گلوبل ساؤتھ سربراہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں جو آج ورچوئل وسیلے سے منعقد کی جا رہی ہے، اپنے خطاب میں نریندر مودی نے کہا کہ گلوبل ساؤتھ کے تمام ملکوں کو ٹھوس کوششوں کی بدولت اپنی حیثیت اور مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو پایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 100 سے زیادہ ملکوں کی ترجیحات جن کی بنیاد پر گلوبل ساؤتھ تشکیل پا رہا ہے وہ یکساں ہیں۔ وزیر اعظم نے خاص طور پر کہا کہ یہی وقت ہے جب عالمی جنوب کے ملکوں کو دنیا کی اور زیادہ بھلائی کے لیے متحد ہو جانا چاہیے۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری، جو الیکٹورل رولز آبزرور کشمیر بھی ہیں، نے آج ایک میٹنگ میں ضلع سری نگر میں فوٹو چناؤ فہرستوں کی جاری سرسری نظر ثانی اور دعووں کے نپٹارے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سری نگر، ای آر اوز اور اے ای آر اوز نے شرکت کی۔ صوبائی کمشنر نے ایس ایس آر 2023 کے تحت ضلع میں حاصل کی گئی پیش رفت اور ڈیجیٹائزیشن عمل کا جائزہ لیا۔ کمشنر موصوف نے متعلقہ الیکٹورل رجسٹریشن افسروں اور دیگر عملے پر زور دیا کہ وہ چناؤ کمیشن کے رہنما خطوط کے مطابق چناؤ فہرستوں کی نظر ثانی عمل میں لائیں۔ پرسار بھارتی سے وابستہ نیوز ایڈیٹرز، کورسپونڈنٹس اور ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹس کے لیے دہرادون میں کیپیسٹی بلڈنگ کے تعلق سے ایک روزہ زونل سطحی ورکشاپ کی صدارت آج پرنسپل ڈی جی نیوز آکاشوانی نئی دلی ڈاکٹر وسودھا گپتا نے کی۔ مذکورہ ورکشاپ میں جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور لداخ سے وابستہ کورسپونڈنٹس اور ایڈیٹرز شرکت کر رہے ہیں۔ ورکشاپ کی
चीफ गेस्ट प्रिंसिपल डीजी न्यूज़ डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के काम को एक बेहतर तालमेल के साथ अंजाम देने की अहमियत को उजागर किया और कहा कि इससे लोगों की इन इदारों के साथ एहसास वाबस्तगी को बनाए रखा जा सकेगा। सरकार की तरफ से अमलाए गए अवामी राब्ते के प्रोग्राम बैक टू विलेज के 5वें मरहले में जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के 4,464 सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। इन सरगर्मियों में जानकारी कैंपों का इनेकाद, वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह, मुख्तलिफ ज़ेर तकमील कामों का मुआयना, ग्राम सभाओं का इनेकाद, पेंटिंग कंपटिशन्स और पानी के नमूने हासिल करना शामिल है। जल शक्ति महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलीन काबरा ने इस सिलसिले में मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वो ज़ेर तकमील कामों और मिशन के तहत दीगर अहदाफ को भी वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने वादी में बिजली की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा इंतजामिया बिजली की सप्लाई पोजीशन बेहतर बनाने में संजीदा नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि पूरे कश्मीर में लोग बिजली की सूरत हाल पर बरसरे एहतजाज हैं, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के बहरान की बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता 6 साल के दौरान बिजली सप्लाई पोजीशन बेहतर बनाने के लिए 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उन शहरियों की अयादत की जो असर डोडा में बस हादसे में जख्मी हुए थे और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर को जख्मियों की हालत से आगाह किया गया। उन्होंने डॉक्टरों और तिब्बी अमले की टीम से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि इन बीमारों के इलाज में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाए। साबिक वज़ीर आला और DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने आज चिनौट बदरवा का दौरा किया, जहां उन्होंने हालिया होलनाक आग के मुतासरीन से मुलाकात की। मौसूफ ने मुतासरीन के लिए मुआवजे और पुरानी मुसाफिर बसों को मिनी बसों से तब्दील करने का इंतजामिया से मुतालबा किया। वाज़ेह है कि मज़कूरा इलाके में हाल ही में आग की एक वारदात में 8 तामीरात खाकस्तर हुए थे। 3 रोज़ा कौमी रवायती छाव पर रक्स फेस्टिवल आज टैगोर हॉल श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुआ। संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली, छाव केंद्र चंदन क्यारी झारखंड और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से मुनक़दा इस रक्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब पर कई मारूफ फनकारों के अलावा तलबा और तालिबात की खासी तादाद मौजूद थी। फेस्टिवल के दौरान डिग्री कॉलेज बेमिना श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल में छाव रक्स की जानकारी के लिए वर्कशॉप मुनक़द किए गए। फेस्टिवल के इख्तिताम पर मीडिया से वाबस्ता लोगों की इज्जत अफजाई की गई और बेहतर कवरेज के लिए दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर का शुक्रिया अदा किया गया। आज बुलवार्ड श्रीनगर में डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर महमूद अहमद शाह ने एक ऑटम एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमे के जॉइंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर भी मौजूद थे। इस 10 रोज़ा नुमाइश में 20 मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए, जिनमें हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर के मुख्तलिफ दस्तकारी नमूने रखे गए हैं। इस मौके पर बोलते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने नुमाइश के पहले दिन अच्छी बिक्री होने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस नुमाइश से कारीगर बरादरी को काफ़ी मदद मिलेगी। सर्द मौसम के करीब आते ही मुख्तलिफ यूरोपीय और मगरबी ममालिक से हिजरत करने वाले सैकड़ों परिंदे कश्मीर वारिद होना शुरू हो गए हैं। दूर दराज इलाकों से हिजरत करने वाले परिंदों की पहली आमद ने जम्मू कश्मीर के आबी ज़खायर को एक बार फिर रवां दवां रखा है। कश्मीर में सदियों पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए ये मेहमान परिंदे अपने मुल्कों में सख्त सर्दी से बचने के लिए कश्मीर आ जाया करते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कश्मीर हर साल कई दूसरी एजेंसियों और स्टेक होल्डरों के इश्तराक से हिजरत करने वाले परिंदों की तादाद का तयन करने के लिए मरदमशुमारी का इनेकाद करता है। महकमे की सालाना मरदमशुमारी के मुताबिक पिछले साल मशरकी यूरोप और वस्ती एशिया से 12 लाख परिंदे मौसमी सरमा के दौरान कश्मीर वारद हुए थे। ये परिंदे साइबेरिया, चीन, फिलिपाइन, मशरकी यूरोप और जापान से आते हैं। हिजरत करने वाले ये परिंदे इन दिनों हुकरसर, वुलर झील, हाईगाम, शालबुग समेत कई मशहूर आबी ज़खायर पर पहुंच रहे हैं। वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स अफशा दीवान ने दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर से इस बारे में बात करते हुए कहा, ये माइग्रेटरी बर्ड सीज़न हमारा हर साल एंडिंग सितंबर से स्टार्ट हो जाता है और लगभग 6 महीने ये बर्ड्स यहाँ पर गुजार कर फिर अपने
वापस अपनी पनाहगाहों में फिर से चले जाते हैं। इस साल भी बर्ड माइग्रेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी तादाद बहुत कम है। अब होकरा की बात करेंगे तो होकरा में इस बार अभी तक हमने लगभग 8 से लेकर राउंड अबाउट 10,000 बर्ड्स काउंट किए हैं। और भी वेटलैंड्स की में भी बर्ड्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन तादाद अभी कम है। हर साल हम इन बर्ड्स का सेंसस करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने सेंसस किया था, और ये हम इन द मिड ऑफ फेब करते हैं। 15-16 फरवरी को हम हर साल एशियन वाटर फाउल सेंसस करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने ये सेंसस किया था, और इसमें हमने लगभग 12 से 13 लाख के करीब बर्ड्स काउंट किए थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बैनर तले आईईसी बांडीपोरा वैन जिले में गुरेज के सरहदी गांव तुलेल पहुंच गई है। आईईसी यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन वैन ने फ्लैगशिप फलाही प्रोग्रामों का पैगाम लेकर कई ग्राम पंचायतों का रुख किया, जहां खासी तादाद में कबायली आबादी रिहाइश पजीर है। यात्रा के दौरान मुतल्लिका अफसरों ने मकामी लोगों, पीआरआईज, कम्युनिटी लीडरों से तबादला ख्याल किया। 70वें कोऑपरेटिव हफ्ते की मुनासबत से पुलवामा में इमर्जिंग एरियाज एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कोऑपरेटिव्स के उन्वान से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने जिले में कोऑपरेटिव की तरफ से एक कसीर रुखी देन को उजागर किया। स्कॉश कश्मीर की वेटरनरी फैकल्टी के डिवीजन ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन शुहामा गांधरबल के एहतमाम से आज फैकल्टी आउटरीच सेंटर पर एक रोज़ा ट्रेनिंग कम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद जिले के डेयरी किसानों में मल्टी न्यूट्रिशन ब्लॉक्स की शक्ल में जानवरों के फीड सैम्पलमेंट और सप्लीमेंट के बारे में बेदारी पैदा करना था। प्रोग्राम का इफ्तिताह स्कॉस्ट के डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नायक ने किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने आज डाक बंगलो अनंतनाग में पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 30 टीबी मुतासरीन में मुफ्त राशन किट्स तकसीम किए। बाद में एसएफ हामिद ने एक मीटिंग में अभियान की पेशरफ्त का जायजा लिया और जिले से टीबी बीमारी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में अफसरों से तफसीलात तलब की। अनंतनाग कस्बे के बाशिंदों ने शिकायत की है कि इलाके में म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की जानिब से नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही है और मुतल्लिका अमला उन्हें ठीक करने या बदलने में नाकाम रहा है। बाशिंदों ने कहा है कि इससे कस्बे में लोगों के नक्ल अमल में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की गैर मौजूदगी से कस्बे में कारोबार भी मुतासिर हुआ है। त्राल प्रीमियर लीग T10 क्रिकेट टूर्नामेंट आज बाजवनी क्रिकेट स्टेडियम त्राल में इख्ताम पजीर हुआ। इसका एहतमाम 42 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन त्राल ने किया था। टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला त्राल 11 और राइजिंग स्टार शाल द्रमन के दरमियान खेला गया। इस मौके पर फौजी अफसरों के अलावा खेल शायकीन की एक खासी तादाद भी मौजूद थी। नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता दीपक यादव और हीरा लाल स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत मुहिम के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक K2K वॉक के जरिए 5000 किलोमीटर का सफर 90 दिनों में तय करेंगे। इस सफर का आगाज उन्होंने आज लाल चौक श्रीनगर से किया। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनमें स्पोर्ट्समैनशिप को तकवीत देने के मकसद से फौज ने स्पोर्ट्स काउंसिल और एक मकामी एनजीओ के इश्तराक से कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों के लिए एक फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज टूर्नामेंट का पहला मैच हीरोज FA और JKFA ईदगाह के दरमियान खेला गया। इस मौके पर शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। J&K जूडो एसोसिएशन के एहतमाम से जूडो के लिए तीसरा खेलो इंडिया विमेंस लीग रैंकिंग टूर्नामेंट शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में खेला जाएगा। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। ये टूर्नामेंट रवा हफ्ते में शुरू होगा और 21 जनवरी तक जारी रहेगा। इस हवाले से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए J&K जूडो एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी गौहर खान ने कहा कि तवक्को है कि सब जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर जुमरों के तहत इस टूर्नामेंट में शुमाली भारत की लगभग 500 लड़कियां हिस्सा लेंगी। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।